Dear students, myself Bishwajit বিশ্বাস, Assistant Professor, Pragati College of Education, Dagapur, Shiliguri, Shalbari, District Darjeeling, West Bengal. I hope you all are well. Well, students, today we are discussing about engagement with field on preparation of learning design. As you know, already I have taken one class regarding engagement with field on preparation of learning design on history and geography. But today's class, especially for the students of sociology and education subject, but history and geography, all students they can also take help from this class, because these four subjects, history, geography, sociology, education, are belong to social science category. So let's go go. What is learning design? A learning design describes educational process, not just courseware, but the whole teaching learning experience. It is more or less formal description of a pedagogical scenario, and that may or may not follow an instructional design model. Basically, a learning design describes learning objectives, who, what and when, using tools and resources and outcomes. We can say the using a learning design models is crucially because it keeps you focused and it provides the necessary steps to provide good quality instruction from the beginning of the process. Through the development, design, implementation and finally when you evaluate the project overall. Learning design lies at the heart of all teachings. Although the designs for learning is usually hidden from students, it involves deliberate choice about when, what, where and how to teach. So, learners, this is called learning design. So, let us go. What about learning designs and what about the engagement with field proper format? So, our topic is EWF on preparation of learning design. जस्ट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दे दिया सोशल साइंस, बट इट ऑल्सो सोशल साइंस एंड एजुकेशन स्टूडेंट्स as well as history and geography students. So, you can say this learning designs for all the students who are who have the method subject education, sociology, history and geography. Be it second sem, course 7B. So, what is the basic format of engagement with field? आप जानते हैं ये आपका कोर्स में है, ये आपका एंगेजमेंट असाइनमेंट बनाना है. सो नाउ हम देखेंगे अभी इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है. देखिए यहाँ पे एक मैंने जस्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, 1.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिज़ाइन, 1.2 quality of learning design, 1.3 steps of learning design, chapter 2 developing learning design, chapter 3 importance of learning design, conclusion. So ये है टोटल फॉर्मेट.
तो ये टोटल फॉर्मेट के ऊपर आपको पूरा लर्निंग डिज़ाइन डेवलप करना पड़ेगा। ये क्लास मैंने लास्ट क्लास में जब डिस्कशन किए थे, इसको टोटली मैंने पॉइंट वाइज डिस्कशन किया। और एक बार हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, क्वालिटीज़, लर्निंग डिज़ाइन, स्टेप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइंस। अभी हम एक मॉडल फॉर्मेट में हम जाएंगे, जो जस्ट एक मॉडल फॉर्मेट दिया गया है, आपको उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये फुल लर्निंग डिज़ाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1.0 मैंने इंट्रोडक्शन दिया। जैसे कि आप पहले ही देखे हैं, आपका जो फॉर्मेट में था, फर्स्ट 1.0 में था आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन? आप इंट्रोडक्शन देंगे रिगार्डिंग लर्निंग डिज़ाइन। यू कैन गिव द हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिज़ाइन, द बैकग्राउंड ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। ये एक आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। देन मैंने यहाँ पे दिया लर्निंग डिज़ाइन इज़ द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। जस्ट इंट्रोडक्शन में एक आपको एग्जाम्पल दे दिया, 2-3 पॉइंट देके। इट रिफर्स टू द डेलिबरेट चॉइस अबाउट व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू टीच। A learning design is a formal description of the individuals who participate in a learning process, the resource and environments used to achieve certain learning objectives, and the sequence of learning activities that should take place. ये जस्ट मैंने एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे। तो आपको ये सेम इसी हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे आगे पीछे हो गया है। स्टेप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइन 1.3 में था, तो यहाँ पे मैंने 1.2 में डिस्कस कर रहा है। ये आप मॉडिफाई कर लीजिए कॉपी में। स्टेप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइन, एज यू नो, already discussed in the classroom and also discussed my last class जब हम हिस्ट्री जियोग्राफी का जो लर्निंग डिज़ाइन हम डिस्कस कर रहे थे उससे पहले। उसी क्लास में हम डिस्कस किए देयर आर बेसिकली 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। वहाँ पे 8 स्टेप्स को मैंने एक एक स्टेप्स वाइज मैंने डिस्कस कर चुके हैं। उसी 8 स्टेप्स को आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स का जस्ट एग्जांपल दिया। तो इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जस्ट राइट अबाउट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बोल दिया इंट्रोड्यूस द टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है। व्हाट इज़ इंट्रोड्यूस द टॉपिक, व्हाट इज़ प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ प्रेजेंट द मटेरियल्स। तो इंट्रोड्यूस द टॉपिक, प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंट द मटेरियल्स, आपको ब्रीफली लिखना पड़ेगा। आप उसी वीडियो फॉलो कीजिए, लास्ट वीडियो में, उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया। यू कैन हेल्प फ्रॉम देयर। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया, फॉलो द प्रीवियस वीडियो फॉर रेस्ट स्टेप्स। तो इसका रेस्ट स्टेप्स प्रीवियस वीडियो में है। जो भी हो, यू हैव टू राइट 8 steps and all the steps you have to write briefly, explain briefly. This is the steps of learning design. And next point is quality of good learning design. इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 1.2, तो आप कॉपी में ठीक कर लीजिए। Qualities of good learning designs. Actually, this point also discussed in last class. Some qualities are there
So just I have written here 2-3 qualities: be learner centric, have an eye for detail, have a passion for learning, be imaginative, creative and innovative. यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट वाइज आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. सो बी लर्नर सेंट्रिक. ए गुड लर्निंग डिज़ाइन शुड बी लर्नर सेंट्रिक. सो व्हाई इट शुड बी लर्नर सेंट्रिक, तो जस्ट आपको ब्रीफली लिखना पड़ेगा. हैव एन आई फॉर डिटेल. व्हाई इट्स हैव एन आई फॉर डिटेल, जस्ट आपको ब्रीफली लिखना पड़ेगा. हैव ए पैशन फॉर लर्निंग. व्हाई. बी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. व्हाई. ये आपको ब्रीफली लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैंने जस्ट 4 क्वालिटीज़ दिया. तो अब बाकी जो क्वालिटीज़ है आप लास्ट क्लास से, लास्ट वीडियो से ले लीजिए. एंड क्लास में भी मैंने ये टॉपिक को डिस्कस किया था. सो फॉलो द प्रीवियस वीडियो फॉर रेस्ट पॉइंट्स. देखिए वहाँ पे भी आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा एंड सारी पॉइंट्स भी आपको मिल जाएगा. सो दिस वाज द 1.2 क्वालिटीज़ ऑफ गुड लर्निंग. सो चैप्टर 1 में अभी जो टोटल पॉइंट है 1.0 मीन्स यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. मैंने बोला you can write the background of learning design, you can write the history of learning design. Then 1.1 meaning and definition of learning design. You should give concept of learning design and definition of learning design. And 1.2 is qualities of learning design. So मैंने अभी तो बोल ही दिया. What about qualities of good learning design? So you have to write the all qualities and you have to explain briefly each and every qualities. And 1.3 is steps of learning design. You know there are 8 steps. You have to explain each and every steps properly. So this is the chapter 1: introduction, meaning and definition of learning design, quality of learning design, steps of learning design. So next chapter 2. Chapter 2 developing learning design. So ये 2.0 में आपको लिखना है developing learning design. उसके बाद आपको learning design का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको दिखाना पड़ेगा. So मैंने ये लर्निंग डिज़ाइन का जो मेन फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट मैंने डिस्कस भी कर दिया जो लास्ट क्लास में. उसी क्लास को आप थोड़ा फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री मैंने जो एग्जांपल दिया था दैट टाइम हिस्ट्री के एक सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर. सो हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर दिया मैंने. उस समय मैंने टोटल लर्निंग डिज़ाइन को डिस्कस भी किया. सो ऑल्दो अगेन टुडे आई एम डिस्कसिंग. सो देखिए दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन. लर्निंग डिज़ाइन फर्स्ट पेज. ये लर्निंग डिज़ाइन आपको A4 साइज पेपर में प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो लर्निंग डिज़ाइन दिस इज द फर्स्ट पेज. यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है. नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे मैंने जस्ट ABC कर दिया. क्लास, जो क्लास आप ले रहे हैं वही क्लास को दीजिए. यहाँ पे मैंने 11 दिया. टाइमिंग 40 मिनट्स. डेट, जो जिस दिन आपका क्लास होगा उसी का डेट दीजिए. ये डेट मैंने आज का दिया. एंड नेम ऑफ द टीचर, जस्ट यू हैव टू राइट योर नेम नॉट माई नेम, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम दिया हुआ है क्योंकि मैं ये लर्निंग डिज़ाइन मैं प्रिपेयर किया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सो नेम ऑफ द टीचर, आपका नाम आपको लिखना पड़ेगा. एंड राइट साइड सब्जेक्ट, या सोशियोलॉजी यूनिट, एजुकेशन एज ए सोशल, and next
नेक्स्ट यूनिट है एडुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। सब यूनिट, यहाँ पे सब यूनिट देखिए मैंने 4 सब यूनिट दिया। फर्स्ट सब यूनिट इज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एडुकेशन। सेकेंड सब यूनिट इज एडुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। थर्ड सब यूनिट इज एडुकेशन एंड इनइक्वालिटी। फोर्थ इज एडुकेशन एंड सोशल चेंजेस। सो ये जो टॉपिक है एडुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये टॉपिक है, ये यूनिट का 4 सब यूनिट है। सो जितना आप ध्यान दीजिए, सो यू हैव टू राइट हियर ऑल सब यूनिट्स। अगर आपका स्पेस नहीं हो रहा है, अगर आपका जगह कम पड़ रहा है, सो यू कैन राइट, जैसे कि ये फर्स्ट सब यूनिट है, आप देखिए एक्सप्लेनिंग ऑफ पब्लिक एडुकेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंशन डॉट एडुकेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू राइट हेयर ऑल सब यूनिट्स। सो टूडेज लेसन एडुकेशन एंड सोशल चेंजेस। तो ये जो 4 सब यूनिट था, चारों सब यूनिट से एक सब यूनिट मैंने लिया, जो सब यूनिट नंबर 4 एडुकेशन एंड सोशल चेंजेस। तो ये टॉपिक के ऊपर मैंने ये लेसन प्रिपेयर किया। सो नाउ लेट्स गो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यू नो अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज so many times I have discussed in class. This is the left side, you see remembering knowledge, understanding, applying, analysis, evaluating and creating. So knowledge, understanding, application, analysis, evaluation and creating, ये टोटल 6 सब डोमेन है, जो सब डोमेन के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, अब नॉलेज में, जैसे कि मैंने ये क्लास में बोल दिया, मैंने अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक मार्क है, ब्लैक मैंने बोल्ड कर दिया, ये वर्ड को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यू हैव टू फ्रेम द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्शन वर्ब्स। सो दीज आर द एक्शन वर्ब्स। सो ये एक्शन वर्ब्स के हिसाब से आपको ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने दो तीन एक्शन वर्ब करके दिया। अगर इफ़ यू रिक्वायर्ड यू कैन फॉलो द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन गूगल, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑल एक्शन वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब डोमेन। सो वहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है, एंड मैंने क्लास में भी इसका जो जेरोक्स कॉपी है मैंने दे दिया स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे मैंने दो एक्शन वर्ब लेके किया। आप अगर चाहे तो 3-4 एक्शन वर्ब्स लेके भी कर सकता है। सो मिनिमम यू हैव टू फ्रेम 3 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब नॉलेज में मिनिमम आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग में 3, अप्लाइंग में 3, एनालिसिस में 3, इवैल्यूएशन में 3, क्रिएटिंग में 3 मिनिमम। इसके ज़्यादा आप 4-5 कर सकते हैं। सो आपके ऊपर। क्यों, वाई हम ये जो लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम फ्रेम कर रहे हैं, क्यों मैंने इसीलिए बोला मिनिमम 3, अगर पॉसिबल है तो आप 3, 4, 5, 6 भी दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका क्लास आप कैसे लिया, आपका क्लास आप कैसे पढ़ाया। सो अगर कोई ऑब्जर्वर, कोई मेंटर ये आपका फर्स्ट फ्रंट पेज देखेगा, देखने के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेगा, तब उसी समय पता चलेगा आप क्लास में क्या लिया थे, आप क्लास में क्या डिस्कस किया, आपका क्लास कितना फ्रूटफुल हुआ, आपका क्लास कितना इफेक्टिव हुआ था। तो यू कैन एज्यूम फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव्स। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक क्लास के लिए। सो अगेन ये जो ब्लैक, ये जो बोल्ड वर्ड है, ये सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो नॉलेज में मैंने जैसे यूज़ किया जस्ट ओनली टू रिकॉल, टू रिकॉग्नाइज। तो
टू रिकॉल रिकॉग्नाइज के बाद क्या है ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर। सो जो मिनिमम कॉमन सेंटेंस है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल। देखिए इसके बाद मैंने क्या लिखा, द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट विल बी रिकॉल। तो सेम मैंने थर्ड नंबर क्या दिया, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द डिफरेंट थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। सो ये एक्शन वर्ब को लेके आपको टॉपिक के हिसाब से, एक्शन वर्ब रहेगा सेम लेकिन टॉपिक के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग, टू एक्सप्लेन, टू रियलाइज, टू स्टेट, टू आइडेंटिफाई, then applying, to apply, analyzing, to analyze, then evaluation, to evaluate, to assess, creating में यहाँ पे मैंने दिया to prepare, to establish, to form, to draw, to sketch, ये सब। सो आपको इसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना पड़ेगा। सो अगेन रिमेंबर, आपका जो क्लास है ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑन these objectives. Next page is analyze learner context. So analyze learner context. यहाँ पे देखिए जस्ट ऊपर में मैंने लिखा explain the general characteristics of students in the context of the current lesson and will ask the following questions points to ensure early behavior. So ये जो कॉमन सेंटेंस है, ये कॉमन सेंटेंस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देन देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन दिया। एक्चुअली एनालाइज लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट मीन्स आप जो टॉपिक, आप जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे तो उसी सब्जेक्ट मैटर्स को आप पॉइंट आउट कीजिए, मेन पॉइंट से डिवाइड कीजिए। ये अब यहाँ पे देखिए मैंने व्हाट इज़ पब्लिक एजुकेशन, देन व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मोबिलिटी, देन डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए। ये तीनों क्वेश्चन, ये मेरा जो कंटेंट है, ये कंटेंट को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। सो यू कैन राइट हियर द पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। सपोज आपका 4 पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4। सो फर्स्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सो एक्चुअली दिस इज हाईलाइट कर रहा है टॉपिक को जी, ये टॉपिक हम क्लास में डिस्कस किए थे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स एंड not select, sorry, this typing error, select, SELECT, develop and select learning materials. So which types of learning materials you use during the class? As you know the basically two types of learning materials. One is general aids and other is specific aids. General aids, the chalk, duster, blackboard, textbook, pointer, this is general. And specific aids, actually is depend upon the topic. ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिक एड्स। ये हर टॉपिक में अलग अलग होगा। सो आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में स्पेशली आप मॉडल यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, टाइमलाइन यूज़ करते हैं। जो यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा
a chart containing information on social education, first specificates, then the image of social changes, एक image मैंने यूज़ किया social changes का. So this is the develops and select learning materials. And next part is learning strategies. Learning strategies, यहाँ पे मैंने जो आपको एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बोला था, मेन टॉपिक लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन भी लिख रहे हैं यहाँ पे. तो जस्ट यहाँ पे यू हैव टू मेंशन द ऑल मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स. यू हैव टू फोकस द मेन पॉइंट्स. सो मेन पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफिनेशन एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस. एंड सेकेंड में क्या दिया मैंने, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर. देखिए मैं जब क्लास शुरू करूँगा, मेरा जब क्लास स्टार्ट होगा, दैट टाइम फर्स्ट मेरा डिस्कशन होगा अबाउट एजुकेशन एंड सोशल चेंज एंड रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर. सो वन साइड इट इज लर्निंग एरिया, वन साइड इज रिलेटेड स्ट्रेटेजी. तो व्हाट विल बी लर्न, हम लर्न करेंगे ये दोनों पॉइंट को, एजुकेशन एंड सोशल चेंज एंड रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर. ये है आपका एरिया, हम इसी एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे. देन रिलेटेड स्ट्रेटेजीज मीन्स आप कौन सा वे में इसको प्रेजेंट करेंगे, किस वे में जाके आप इसको सीखेंगे. जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज, जब हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में, तब हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही नॉर्मली बोलेंगे. एजुकेशन का डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे, एंड सोशल चेंजेस का डेफिनेशन हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे. दैट मीन्स आप लेक्चर दे रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को. सो वही जो आप बोल रहे हैं आपको यहाँ पे ब्रीफली लिखना पड़ेगा. जैसे कि फॉलो कीजिए, प्रूफ एंड डिस्कशन. यहाँ पे मैंने जस्ट प्रूफ एंड डिस्कशन एक कोड दिया. आप ऐसे मत लिखिए प्रूफ एंड डिस्कशन, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे 2-3 लाइन 4 लाइन लिखना पड़ेगा. सेम रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, ये भी आप जब रिलेशन दिखा रहे हैं, कम से कम 1 या 2 रिलेशन आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको. सो रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, ये जब हम एजुकेशन और कल्चर का रिलेशन हम डिस्कस किए, दैट मीन्स व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ कल्चर, ये दोनों को हम अलग अलग से बताए. दिस इज़ एजुकेशन एंड दिस इज़ कल्चर. एंड इसके अंदर में जाके हम स्टूडेंट्स को समझाएं, तो एक्चुअली दिस इज़ द मेन रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर. सेम पॉइंट 3, एक्चुअली यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज दिया 1, 2, 3, 4. आप ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप. यहाँ पे 1 नहीं लिख के फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो स्टेप 4 इधर भी लिखिए, स्टेप 1 का रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, स्टेप 2 का रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, 3 का रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, स्टेप वाइज भी आप लिख सकते हैं. सो सेम स्टेप 3 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल चेंजेस. यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स मेरा है, जियोग्राफी, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल. तो ये 4 मैंने सब कंपोनेंट लिया. ये है मेरा लर्निंग एरिया. इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्कस करूँगा. तो जियोग्राफी के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले 2-3 लाइन. देन साइकोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये सोशल के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर. सो ऐसे आपको नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस. ये थ्योरीज में आप क्या क्या यहाँ पे किया, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. So this is the learning strategies. You can say this is the main part of a particular class. This is the ये है एक ये प्रेजेंटेशन. आप जानते हैं प्रेजेंटेशन जो मेन पार्ट होता है क्लासरूम का, ये है ये लर्निंग स्ट्रेटेजीज का मेन. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन. So design for evaluation, ये है लास्ट पार्ट. तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन सेंटेंस लिखा है, टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू टेस्ट द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लर्नर्स. तो
आपका प्रेजेंट प्रिपरेशन हो गया, आपका प्रेजेंटेशन हो गया। नाउ इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं आपका स्टूडेंट्स को, सो आप इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स you have to ask one question from knowledge, one question from understanding, one question from application and one question from skill। तो मैंने क्लास की शुरू में मैं आपको बोला था जे ऑब्जेक्टिव्स जो आप फ्रेम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका होल क्लास। सो अगर ऑब्जेक्टिव्स आप ठीक से फ्रेम कर रहा है, दैट मीन्स आपका क्लास भी ठीक से होगा, ये हम एज्यूम कर सकता है, क्योंकि यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। सो आपको अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब डोमेन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सो मैंने फर्स्ट दिया नॉलेज, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ स्किल। मैंने मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन मैंने दिया। सो व्हाट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो जब मैंने आपका कोर्स 3 सेकेंड सेमेस्टर कोर्स 3 का जो मैंने माइक्रो टीचिंग का क्लास ले रहा था, शायद वो मेरा 2-3 क्लास वीडियो 2-3 क्लास से पहले होगा, तो वो भी वीडियो अपलोड हुआ है। तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू विल आस्क, ये सब क्वेश्चंस के बारे में वहाँ पे लिखा है। सो आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए उसी हिसाब से। देन डायग्नोज द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लास। तो यहाँ पे एक्चुअली इफ़ एनी, अगर आपका क्लास 100% सक्सेसफुल हो रहा है, दैट मीन्स नो नीड टू रिमेडियल क्लास। अगर आपका रिमेडियल क्लास का ज़रूरत नहीं है, डोंट राइट हेयर। ये जो फॉर्मेट है, आपको ये पॉइंट लिख के यहाँ पे छोड़ दीजिए, आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चला है मेरा क्लास जो है वो उतना अच्छा नहीं हुआ, उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, एवरेज हुआ, दैट मीन्स अगर हम ये क्लास को दोबारा लेंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। दैट टाइम यू डिसाइड, यस आई विल टेक अगेन द क्लास, एंड यहाँ पे उस क्लास का आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। सो ये है डायग्नोसिंग द वीकनेस। पहले आपको डायग्नोसिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन रिमेडियल क्लास का अनाउंस करना पड़ेगा। सो ये है डायग्नोसिंग द वीकनेस ऑफ रिमेडियल क्लास। तो ये है लर्निंग डिज़ाइन। एंड लास्ट इज सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। एक्चुअली ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखा है, ये 2 पॉइंट का अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट एक्चुअली जब आप जाएंगे स्कूल में, जब इंटर्नशिप पे जाएंगे, तब उसी लर्निंग डिज़ाइन में यहाँ पे मेथड टीचर साइन करेगा, यहाँ पे HM साइन करेगा। सो उसी समय इसको ज़रूरत है। सो अगर आप इसको दे रहे हैं तो वेल, अगर नहीं दे रहे हैं वो भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ये है डेवलपिंग लर्निंग डिज़ाइन। नाउ मूव ऑन चैप्टर 3। चैप्टर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग डिज़ाइन 3.0 एंड कंक्लूशन। ये चैप्टर 3 में जस्ट आपको यू हैव टू राइट हियर द फ्यू इम्पोर्टेंस एंड 1 कंक्लूशन। सो ये इम्पोर्टेंस एंड कंक्लूशन लिखने के बाद आपका ये EWF कंप्लीट होगा। सो थैंक यू सो मच।